آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے بے ایمان ہیں، سمویدھان سچا ہے، جے بھیم جے میم، آئین زندہ باد، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ایوان پارلیمنٹ میں نعروں کی گونج۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی کی حالت مستحکم، نئی دہلی کے اپولو ہاسپٹل میں داخل۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے لیا ریاستی وزراء کے ہمراہ گروکل اور اقامتی اسکولز و ہاسٹلز کا جائزہ، طلباء کے ساتھ کیا لنچ۔ سرکاری ہاسپٹل میں مریضوں کی خدمت کرنے کے بجائے نرسز کا ڈانس، تلنگانہ کے جگتیال میں پیش آیا واقعہ۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے نئے سال کے موقع پر سخت رہنما ہدایات جاری، ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستانی وفد نے امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے تقریباً 3 گھنٹے کی طویل ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات میں پاکستانی وفد میں سینیٹر بشرا انجم، سینیٹر طلحہ محمود اور ماہر نفسیات ڈاکٹر اقبال افریدی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر جانے والے وفد نے واشنگٹن میں ارکان کانگریس اور محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی عافیہ کی رہائی کے لیے ملاقاتیں کی اور امریکی صدر جو بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی اپیل کی۔ آج میں اس وقت ڈیلس میں ہوں اور آج صبح میری ملاقات تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ، جو تقریباً 3 گھنٹے ہماری یہ ملاقات جاری ہے۔ اس 3 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بہت ساری باتیں کی اور اس کا جو سب سے بڑا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے جیل سے ریلیز کرایا جائے۔ 16 سال یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر اس نے قید کاٹی ہے، ان بچوں کو بھی یاد کر رہی تھی، والدہ کو بھی یاد کر رہی تھی، والد کو بھی یاد کر رہی تھی، بہن کو بھی، اور اپنے سارے بچوں کو، عزیز و قارب کو، اور اس کا کنسرن تھا کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر اگر کیس ہے تو اس کی بھی سزا یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر 10 سال کی ہے، لیکن بہرحال اس نے کافی ٹائم گزارا۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ڈرون سے مشابہ پراسرار طیاروں کی پروازوں نے ہلچل مچا دی ہے۔ شہریوں نے پراسرار طیاروں کو اڑتے دیکھا۔ امریکی میڈیا نے کہا کہ نیو جرسی، نیو یارک اور میری لینڈ میں پراسرار ڈرونز کو پرواز کرتے دیکھا گیا۔ پنسلوینیا اور دیگر ریاستوں میں بھی ہزاروں شہریوں نے پراسرار طیاروں کو اڑتے دیکھا۔ شمالی بلوچستان میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ کوئٹہ میں پارہ -6 تک گر گیا ہے، جس سے کراچی میں سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی سے خیبر تک ملک بھر میں سردی کی لہر جاری ہے۔ گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سڑکیں، مکانات اور درخت بھی برف سے ڈھک گئے، جبکہ ٹھنڈ کی شدت بھی بڑھ گئی۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران ہفتے کو لوک سبھا میں آئین پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس پارٹی آئین کا لفظ بولنے کی بھی اہل نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی پارٹی کے آئین کو نہیں مانتے، جنہوں نے کبھی اپنی پارٹی کے آئین کا احترام نہیں کیا، ان کی رگیں آمیریت اور خاندانی سیاست سے بھری ہوئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے لگائی گئی ایمرجنسی پر بھی نریندر مودی نے تبصرہ کیا، جس کے ساتھ ہی اس تبصرے نے اپوزیشن میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ سابق میں آئین کو نہ مانتے ہوئے مکمل تائید کے باوجود سردار پٹیل کی بجائے نہرو جی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं।
12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। हिंदुस्तानी आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह की याद में बहस के दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजहबी ढांचों के सर्वे या मुनहदम करने के मुतालिबात पर तशवीश का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने वक्फ जायदादों और मुख्तलिफ मसाइल पर लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद की। बैरिस्टर ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ जायदादें छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 पढ़ें, ये मजहबी और इदारों को अपनी इबादत गाहों और खैराती कामों को बरकरार रखने का हक देता है। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें आर्टिकल 26 पढ़ाया जाए। इनका मकसद ताकत के जरिए वक्फ की जायदादें छीनना है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि बीजेपी उर्दू जुबान को खत्म करने और हिंदुत्व कल्चर को फरोग देने की कोशिश कर रही है। आर्टिकल 26 देखिए, It gives religious denomination the right to establish and maintain institution for religion charitable. वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। हॉस्पिटल के हुक्काम ने तस्दीक की है कि इनकी हालत मुस्तहकम है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। 96 साल आडवाणी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनेत सूरी की देखभाल में है। साबिक नायब वजीर आजम को 2 दिन पहले हॉस्पिटल लाया गया था। वो इस साल के अवाइल में भी इसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, ताहम उस बार हॉस्पिटल में दाखिल होने की वजह का इंकिशाफ नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के साथ शख्सी तौर पर गुरुकुल और अकामती स्कूल्स व हॉस्टल्स का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। वहां उन्होंने तलबा के साथ लंच किया और इनसे तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि गुरुकुल तालीमी इदारों को कई जहती सलाहियतों के मराकिज के तौर पर तस्लीम कराने का हदफ होना चाहिए। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के चिलकूर में गुरुकुल स्कूल का दौरा किया और वहां गुरुकुल इदारों और फलाही हॉस्टल में कॉमन डाइट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि BC, SC, ST और अक़लियती गुरुकुल इदारों और हॉस्टल्स में एक जैसा मेनू नाफिज किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने डाइट चार्जेस में इजाफे के मुताबिक नया मेन्यू तैयार किया है। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुरुकुल इदारों का नज़म PV नरसिम्हा राव के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने हालिया दिनों में डाइट चार्जेस में इजाफे का जिक्र करते हुए कहा कि हमने गुरुकुल इदारों की बका के लिए इस प्रोग्राम को काफ़ी अहमियत दी है। इन इदारों के तलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए किए जाने वाले इक़दामात मुअस्सिर हैं। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन बी वेंकटेशम और साबिक DGP महेंद्र रेड्डी भी एक वक्त में गुरुकुल के तलबा थे। इन इदारों से तालीम हासिल करके कई अफराद आला मनसब तक पहुंचे हैं।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने असातिज़ा की 4000 मुलाजिमतों को मेगा डीएससी के जरिए पुर करने का ऐलान किया है। उन्होंने रियासत के हॉस्टल्स की सूरत हाल का जायजा लेने और तफसीलात हासिल करने के लिए मुनक्किदा एक रोज़ा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर खम्मम जिले के मुदीरा बोनाकल में वेलफेयर गुरुकुल स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही 6000 ओहदों को पुर करने के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पेशरू हुकूमत के दौर में 5 बरस में एक मरतबा भी हॉस्टल के तलबा के लिए डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा नहीं किया गया था। ताहम रियासत में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में 40% का इजाफा किया गया है। तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने एक यूट्यूब चैनल कमिश्नर सिविल सप्लाईज के नाम से शुरू किया ताकि किसानों को बराह रास्त मालूमात फराहम की जा सके। ये चैनल गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर सिविल सप्लाईज DS चौहान ने शुरू किया, जिन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये चैनल किसानों को ज़रूरी मालूमात फराहम करेगा। अपने खिताब में चौहान ने कई अहम मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया, जिनमें धान की खरीदारी पॉलिसी, रियासत में जारी खरीदारी और किसानों को हुकूमत के खरीदारी मराकिज़ पर 500 रुपये का बोनस देने का ऐलान शामिल था। उन्होंने किसानों से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की अपील की। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 15 और 16 दिसंबर को 783 ग्रुप 2 सर्विस आसामियों के इम्तिहानात के इनेकाद के लिए मजबूत इंतजामात किए हैं। इस अमल को आसान बनाने के लिए रियासत भर में कुल 1368 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। इन ओहदों के लिए नोटिफिकेशन 29 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जिसमें 5,51,943 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत के लिए दरख्वास्त देने के साथ एक अहम रद्द-ए-अमल को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मुख्तलिफ तकनीकी मसाइल की वजह से मुलतवी होने के बाद TGPSC अब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर इम्तिहानी पर्चा 150 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें कुल 4 पेपर्स 600 नंबरों के मजमूई स्कोर में हिस्सा डालेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की खिदमत करने के बजाय नर्सेस ने हॉस्पिटल के एक वार्ड में क्रिसमस तकरीब मुनक्किद करते हुए डांस किया। ये वाक़या तेलंगाना के जगत्याल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में पेश आया। नर्सेस को डांडिया के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी लाठियों के साथ फिल्मी गीत पर रक्स करता हुआ देखा गया है। इस वाक़े की इतला पर जब मीडिया वहां पहुंचा तो नर्सेस ने उनको देखकर रक्स रोक दिया। ये तकरीब मरीजों के रूम से मुतसिल कमरे में मुनक्किद की गई। RMO हॉस्पिटल सुमन ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा कि उन्होंने ही इसकी इजाज़त दी थी। एडिशनल कलेक्टर गौतम रेड्डी, जिनको इस मामले का इल्म हुआ, तो इस वाक़े की जांच की इजाज़त दे दी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक बार फिर तेंदुए के हमले का वाक़या पेश आया। बाजार हितनूर मंडल के डेडरा गांव में एक खातून पर तेंदुए ने उस वक्त हमला किया जब वो खुले में रफ़े हाजत के लिए गई थी। तेंदुए के हमले के नतीजे में खातून शदीद जख्मी हो गई। मकामी लोगों ने मुतासिरा खातून को देखा और फौरी तौर पर इलाज के लिए आदिलाबाद रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी खातून की शिनाख्त भीमा बाई के तौर पर हुई है और इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिससे इनके खानदान में तशवीश पाई जाती है। हाल ही में आसिफाबाद जिले में एक नौजवान लड़की पर शेर ने हमला किया था, जिसमें इसकी मौत वाक़ हो गई थी। कागजनगर मंडल के करीब एक गांव में यह वाक़या पेश आया जब खातून कपास के खेत में काम कर रही थी। शेर ने पीछे से हमला किया और दीगर मजदूरों के चीखने पर वहां से फरार हो गया। मुतासिरा खातून को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शदीद जख्मों की वजह से वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। जिले नलगुंडा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM में जुमा की रात देर गए बड़ी चोरी का वाक़या पेश आया। ATM मशीन से चोर 24 लाख रुपए नकदी ले गए। इस वाक़े में बदनाम जमाना ग्रोह के मुलविस होने का शुबा है। नलगुंडा के सुपरिटेंडेंट पुलिस शरद चंद्र पवार, जिन्होंने मकाम वाक़े का मुआयना किया, जांच की क़ियादत कर रहे हैं। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी है। बच्चों के साथ खेलते हुए झूले की रस्सी में गलती से गर्दन फंस जाने से एक खातून की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के बेलमपल्ली बस्ती में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। पुलिस ने बताया कि 42 साला नीरजा की मौत उस वक्त हुई जब उसकी गर्दन झूले की रस्सी में फंस गई। वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। नीरजा की 2 बेटियां नवीश्री और सुचित्रा और एक बेटा धनुष था।
وہ واقعے کے وقت دھنوش کو جھولے کا استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہی تھی۔ تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں بڑے پیمانے پر منشیات ضبط کی گئی۔ محکمہ آبکاری کے عہدیداروں نے 2.5 کلو گرام ممنوع الپرازولیم ضبط کیا اور سدی پیٹ کے کشٹا ساگر میں ایک شخص کو گرفتار کیا۔ ضبط شدہ الپرازولیم کی قیمت 25 لاکھ روپے بتائی گئی۔ گرفتار ملزم کی شناخت راجو گوڑ کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ ایک اور ملزم ایم ارجن گوڑ مفرور ہے۔ تیسرا ملزم سی نرسملو پہلے ہی کسی اور کیس میں جیل میں محروس ہے۔ راجو گوڑ کو 14 دن کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے دنڈیگل کے ایئر فورس اکیڈمی میں 214 نمبر کورس کے کمبائنڈ گریجویشن پریڈ کے دوران ویپن سسٹم برانچ کے عہدیداروں کے پہلے بیچ کو ہندوستانی فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ 26 خواتین کے بشمول جملہ 204 فلائنگ کیڈٹس کو اکیڈمی میں تربیت کے بعد IAF کی فلائنگ اور گراؤنڈ ڈیوٹی برانچوں میں شامل کیا گیا۔ ہندوستانی بحریہ اور ہندوستانی کوسٹ گارڈ کے علاوہ دوست ملک ویتنام کے ایک عہدیدار بھی پریڈ کے دوران پاس آؤٹ ہوا۔ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کا IAF چیف AP سنگھ نے معائنہ کیا۔ فلائنگ آفیسر پراگ دھنکر کو پائلٹس کورس میں مجموعی طور پر میرٹ کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آنے پر پریزیڈنٹ پلیگ کے ساتھ ساتھ چیف آف دی ایئر اسٹاف سورڈ آف آنر سے نوازا گیا۔ حیدرآباد کے چنچل گوڑا جیل سے اداکار الو ارجن کو رہا کر دیا گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے بیل احکامات کے بعد جیل حکام نے ہفتے کی صبح الو ارجن کو جیل کے پچھلے گیٹ سے رہا کیا۔ چند روز قبل حیدرآباد کی سندھیا تھیٹر میں ہجوم کے دوران بھگدڑ مچ گئی تھی، جس میں ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ اس کیس میں چکڑ پلی پولیس نے الو ارجن کو جمعہ کے روز گرفتار کیا تھا اور بعد ازاں انہیں نامپلی کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں 14 دن کی عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا تھا۔ الو ارجن کے وکلاء نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور عبوری ضمانت حاصل کی۔ اگرچہ جمعہ کی رات انہیں رہا ہونا تھا، لیکن ضمانت کے دستاویزات کے وصول ہونے میں تاخیر کی وجہ سے وہ جیل میں ہی رہے۔ آج صبح الو ارجن کو چنچل گوڑا جیل سے رہا کر کے ان کے گھر روانہ کیا گیا۔ నేను ఒకటే చెప్తానండి, వన్స్ అగైన్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఐ విల్ పర్సనలీ బీ దేర్ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే పాసిబుల్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ యాక్సిడెంటల్. నేను సినిమా థియేటర్లో సినిమా ఇన్సైడ్ సినిమా థియేటర్ వాచింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ and an accident happened outside, which I was inside the theater watching a movie with my family and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with that family, and I'll be there to I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theater for the last I've been coming to the same theater for the last 20 years, and I've been to the same place more than 30 times, and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident, and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you follow the same procedure every time that you have informed the police? Because I don't want to get into all the details. This is what it is, because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case. So I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustanki wait chestunam. Yes, ante. Thank you. Andarki thank you andi. Marosari thank you for the media love and support. Thank you andi. Thank you so much. تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے 15 دسمبر سے لنگمپلی سے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے شمشاباد تک پشپک بس خدمات چلانے کا فیصلہ کیا۔ لنگمپلی سے RGIA پشپک بس سروس مختلف علاقوں کو مربوط کرے گا، جن میں آلوین ایکس روڈ، حفیظ پیٹ، کونڈاپور، کوتاگوڑا اور گچی باولی شامل ہے۔ RTC حکام نے کہا کہ بسوں کے روٹ اور شیڈول کا منصوبہ مسافروں کی سہولت اور آرام کے لیے بنایا گیا ہے، جو خاص طور پر ہوائی اڈے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ لنگمپلی سے RGIA کے لیے پہلی بس صبح 5:45 پر شروع ہوگی اور آخری بس 8:45 پر روانہ ہوگی۔ اسی طرح RGI سے پہلی بس صبح 7:30 پر روانہ ہوگی اور آخری بس رات 10:30 پر روانہ ہوگی۔ نئے سال کی شام کی تقریبات کے حصے کے طور پر منعقد کیے جانے والے پروگراموں کے لیے حیدرآباد پولیس نے بنیادی اصول واضح کیے ہیں۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کی جانب سے جاری کردہ اصولوں میں کہا گیا ہے کہ شہر میں نئے سال کی تقریبات کے منتظمین کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کسی بھی پرفارمنس میں فحاشی اور عریانی نہ ہو۔
रहनुमा खतूत में मुंतजिमीन से कहा गया कि वो पार्टी के मकाम के दायरे में मंशियात की फरोख्त पर कड़ी नज़र रखें। अगर ऐसा न हुआ तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी तरह जोड़ों के लिए मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों और पब और बार्स में किसी नाबालिग को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रहनुमा खतूत में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा, किसी भी शख्स को मंशियात और नफ्सियाती मादों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और अगर इंतज़ामिया इसकी रोकथाम में नाकाम रहती है तो ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी का बाइस बनेगा और इसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मजीद कहा गया कि पार्किंग एरियाज और दूसरी जगहों पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए जहां पर छुपे छुपे मंशियात फरोख्त की जाती हैं। उन्होंने कहा कि मुंतजिमीन को चाहिए कि वो म्यूजिक की आवाज़ की सतह 45 डेसिबल से कम रखें। वाक़यात की निगरानी के लिए रिकॉर्डिंग की सहूलियात के साथ निगरानी के कैमरों को दुरुस्त करें और हिफाजती रसाई और ट्रैफिक के इंतजामात के लिए मुनासिब सिक्योरिटी गार्ड्स का तकर्रुर करें। नशे में ड्राइविंग को रोकने के लिए अपनी कोशिश में पुलिस ने कहा कि ये पबों या बार्स के इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो नशे की हालत में मौजूद सारिफीन को ड्राइवर या कैब फराहम करने के लिए ज़रूरी इंतजामात करें। तेलंगाना का जिला आदिलाबाद शदीद सर्दी की लपेट में है। जिले के बेला मंडल मुस्तकर में हफ्ते को 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। भीमपुर मंडल के अरली गांव में अकल तरीन दर्जे हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले के तमलाडुगु, आदिलाबाद अर्बन, जैनात और नेराडीगुड़ा मंडलों में अकल तरीन दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस था 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया है। नारनूर, तमसी, गढ़ी मंडलों में अकल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दरे असना आसिफाबाद जिले के सरपुर मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि केरामेरी मंडल में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले बेईमान हैं, संविधान सच्चा है। जय भीम, जय मीम, आइन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ऐवान पार्लियामेंट में नारों की गूंज। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी की हालत मुस्तहकम, नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लिया रियासती वज़रा के हमरा गुरुकुल और अकामती स्कूल्स व हॉस्टल्स का जायजा, तलबा के साथ किया लंच। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की खिदमत करने के बजाय नर्सेस का डांस, तेलंगाना के जगतियाल में पेश आया वाकया। हैदराबाद पुलिस की जानिब से नए साल के मौके पर सख्त रहनुमा हिदायत जारी, हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।